नमस्कार, मैं समीरा बानू न्यूज़ अंडमान 24/7 में आपका स्वागत करती हूं। आज की इस कड़ी में हम आपको नाबार्ड के 41वां स्थापना दिवस के आयोजन पे ले चलेंगे, जहां नाबार्ड के अफसर सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह को सम्मानित भी करेंगे और अंडमान की जनता को नाबार्ड के परियोजना से लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करते हुए दिखेंगे। नाबार्ड हमारे द्वीपों में पिछले 4 दशक से काफी सक्रिय है और कई सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने इससे अपनी जीवन में परिवर्तन भी लाए हैं। नाबार्ड से जुड़े परियोजनाओं के फायदे तथा कैसे लोग इनसे संपर्क करें और 2022-23 में इनके रोड मैप्स के बारे में जानने के लिए चलिए सीधे हमारे रिपोर्टर यामिन जी की यह रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इनके 41वां स्थापना दिवस समारोह पे, और यहां पर आज के दिन ये स्वयं सेवा समूह को पुरस्कारित भी करेंगे। यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडमान निकोबार में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इन लोगों को पुरस्कारित भी किया जाएगा। और आज इन लोगों का, नाबार्ड वालों का 41वां स्थापना दिवस है। आज हम जानेंगे नाबार्ड की उपलब्धियों को, इनके ऑफिसर्स द्वारा, और नाबार्ड से जुड़े लोग जो नाबार्ड के जो फैसिलिटीज़ है उससे उन लोगों ने क्या क्या फ़ायदा उठाया। चलिए सीधे अंदर चलते हैं और जानते हैं। नमस्कार, अभी हम सीधे चलते हैं मिस्टर एच मनोज जी से बात करते हैं, जो कि नाबार्ड के जनरल मैनेजर ऑफिसर इंचार्ज हैं। नमस्कार सर। Namaskar. NABARD has been engaged in promoting agriculture and rural development all over the country and also in Andaman Nicobar Islands. We have left our footprints in almost every area in agriculture and allied activities, that is animal husbandry, poultry, dairy, and also in off-farm sector, that is in skill development activities, in providing farmers with marketing facilities through rural huts, rural marts. We have also doing awareness creation in respect to climate change. We have extended refinance facility to Andaman State Cooperative Bank so that they can lend it to farmers at a lesser rate of interest. Right. So our goal is to promote sustainable development of agriculture and rural development. Sir, me and our team were also watching your program, which was very inspiring, and we all also request our villages, our people from the Andaman Islands to come forward and take part in the NABARD projects, and people are here also ready to help these people, right sir? Definitely. We do support farm sector and every other activity which is qualified as priority sector lending. We support either through institutions like CARI, KVK, through NGOs, through PACs, through self-help groups, through FPOs. So anybody who wants any help or assistance in any of these areas can definitely approach NABARD. We'll be glad to extend wholehearted support for promoting agriculture and rural development here. Sir, it was quite overwhelming to see your program that you also awarded so many self-help group people. So, according to NABARD, according to you, in Port Blair, we would like to know, or in Andaman Islands, which is the best SHG? If you like you have seen today, we have given our first prize to an SHG called Ankur SHG. SHG. Okay. Every year we award, we find out one SHG who's been performing well during that particular year based on some criteria like how much savings they have made, how much lending they have, done within the group, how much bank loan they have taken, whether they were conducting meetings regularly. There are certain criteria. So based on that, we arrive at these awards every year. Okay. So this year Ankur SHG has been given the best SHG awards. Sir, any last word for our viewers? NABARD is there to support you. NABARD is there always with you 24/7 to support agriculture, to support farmers, to support cooperatives. We do develop institutions like FPOs. We create new institutions. So we are there with farmers and the deprived people. You can approach NABARD for any support. So we are there with you.
तो जैसा आप लोगों ने सुना, मनोज सर ने काफ़ी सारी बातें बताई यहाँ की जनता के लिए, खासकर जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और जो ग्रामीण विकास के लिए इन लोगों के पास, नाबार्ड के पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनका भी यही कहना है कि बढ़ चढ़ कर आए और इनसे प्रोजेक्ट्स लें और अपनी ज़िंदगी को बदलें। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आज के जो प्रोग्राम थे नाबार्ड से जुड़े हुए, इनमें कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भी लोग आए थे, ऑफिसर्स आए थे, और उन लोगों की भी राय हम जानते हैं। अभी हम चलते हैं डॉक्टर जय सुंदर जी। नमस्कार सर। धन्यवाद सर, आज के इस प्रोग्राम को लेकर हमारे दर्शकों को अगर आप कुछ बताना चाहें तो प्लीज़। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं नाबार्ड को उनके स्थापना दिवस के इस पावन उपलक्ष्य पे। नाबार्ड और कैरी का बहुत ही एक गहरा रिश्ता है, क्योंकि कई वर्षों से हम लोगों ने एक साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि हमारा भी जो उद्देश्य है कि रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फार्म डेवलपमेंट, किसानों का प्रोग्रेस के लिए, और नाबार्ड का भी वही लक्ष्य है। और दोनों ने, हम लोगों ने मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी हमारा ऑनगोइंग चल रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। और हाल ही में हमारे पास करीब 20 प्रोजेक्ट्स के आसपास चल रहे हैं फार्म सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम के तहत, जिसमें हम डिफरेंट जो फील्ड है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरीज डेवलपमेंट हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इसमें हम लोग ध्यान देते हैं। हम लोगों का मेन मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी विकसित करना है, और नाबार्ड जैसा एक जो संस्था है उसके माध्यम से हम लोगों तक इनको पहुंचाते हैं, अप स्केलिंग करते हैं। तो इस उपलक्ष्य पर मैं फिर से नाबार्ड के जब सभी जो उनके एम्प्लॉई है सबको मैं एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, विश करता हूँ, और ये उम्मीद रखता हूँ कि ये जो हम लोगों का कोऑर्डिनेशन है आगे भी इस तरह चलता रहे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आइए अब हम आपको मिलाते हैं मिस्टर आदर्श और मिस्टर सौमित जी से। इन लोगों ने अंडमान में एक नए तरीके का फार्मिंग को उपयोग में लाया है और इसको वास्तविक में कर भी रहे हैं, और इनके फार्म भी है यही हम्फ्रीगंज में। सीधे उन्हीं से जानते हैं इनके जो फार्मिंग का स्टाइल है, जिनको इनका हाइड्रोफोनिक फार्मिंग कहते हैं, इनके बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार सर, थोड़ा हमने YouTube चैनल में भी देखा है आप लोगों का हाइड्रोफोनिक फार्मिंग के बारे में, तो इसे विस्तार से थोड़ा अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो। जी सर, एक्चुअली ये हाइड्रोफोनिक फार्मिंग जो एक इजरायली टेक्नोलॉजी है जिसमें सॉइल को यूज़ नहीं करते। हम बेसिकली फार्मिंग करते हैं वाटर के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में स्पेस को यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि सॉइल जो है नीचे ही रहता है, लेकिन आप वाटर को क्या कर सकते हो, रैक बाई रैक ऊपर कर करके वहाँ पे फार्मिंग कर सकते हो। और इसमें एडवांटेज ये है कि जो आप सॉइल में पेस्टिसाइड डाल रहे थे उसके वजह से सॉइल ख़राब हो रहा था, वो सब नहीं कर रहे हैं आप वाटर पे यूज़ कर रहे हो, वाटर पे न्यूट्रिशन डाल रहे हो जितना जितना प्लांट्स को चाहिए। और इससे क्या होता है, वाटर भी सेव होता है, प्लस जो प्लांट्स आपके थोड़े देर में उगता है, जैसे कि 60 डेज़ का टाइम होता है प्लांट्स उगने का, वो 45 डेज़ में उग जाएगा आपका। सो इट्स रियली न्यू टेक्नोलॉजी, और मैं चाहता हूँ कि घर घर में ये टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाए। अंडमान में फर्स्ट किया है हमने। हम छोटा एक होम किट भी बना रहे हैं सर अभी। हम चाहते हैं कि सबके घर में हाइड्रोफोनिक्स हो। बहुत ईजी होता है, बहुत ईजीली सेटअप किया जा सकता है। तो क्या ये जगह भी कम लेती है जी, ऐसा कुछ? जी सर, एक्चुअली हमारे पास हमारा ये आइडिया ही हमारा इसलिए आया कि हमारे पास जगह कम था अंडमान में। वी हैव ओनली 700 स्क्वायर मीटर। तो हम सोच रहे थे कि बहुत लार्ज स्केल पे नहीं कर पाएंगे। देन वी सर्च्ड ऑफ ए टेक्नोलॉजी एंड वी गॉट टू नो कि देयर इज सम टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग हम 700 स्क्वायर मीटर में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। दैट इज़ हाइड्रोफोनिक्स सर। आदर्श जी, आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे? जी, सो बेसिकली क्या करते हैं हम कि एक रेस्ट प्लेटफॉर्म होता है और हमारा जो है सॉइल में नहीं होता है कोई भी चीज़। तो इसके वजह से क्या है कि जो सॉइल बॉर्न डिसीजेस है वो प्लांट्स में नहीं लगते हैं, ये मेन है। और जो प्लांट्स जो है, जो नॉर्मली जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होता है आपका जो सॉइल में, उसमें जो है जो न्यूट्रिशन लेता है वो बस वो जो प्लांट का जो न्यूट्रिशन है हम पानी में बस डालते हैं। तो जितना प्लांट्स को लेना है वो न्यूट्रिशन पानी से ही ले लेता है। तो ऐसा है। तो और इसमें क्या है कि इसमें लेस्ट पेस्ट्स वगैरह आते हैं और वीड्स वगैरह का कोई ये नहीं है, इसमें बिल्कुल नो वीड्स। और हम कोई पेस्टिसाइड्स ऊपर से नहीं डालते हैं। इट्स लाइक कि वो अपना नेचुरली ग्रो करता है और हम उसे हार्वेस्ट करके अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो ये आप सिर्फ हॉबी के लिए कर रहे हो या ये इसी से आपका जीवन व्यतीत हो रहा है? सर एक्चुअली मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और ये मेरे पार्टनर एक सिविल इंजीनियर है। तो वी वर वर्किंग बिफोर कोरोना। तो कोरोना पे यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम थी जॉब्स के लिए, सच बोलूँ तो मैं।
तो हमारा पैशन था एग्रीकल्चर का। वी एक्चुअली हम दोनों ने सेम स्कूल से पढ़ाई की है, KV1 पोर्ट ब्लेयर से। तो हम अक्सर डिस्कस करते थे कि एग्रीकल्चर फील्ड में अपने को जाना है, बट फिर हम नहीं कर पाए। तो अभी जब मौका मिला सर, हमने सोचा कि क्यों ना फुल फ्लेज में एग्रीकल्चर के ऊपर ही करते हैं। तो नाउ वी आर टोटली डिपेंड ऑन दिस स्टार्टअप, और हम जानते हैं, उनको पूरा विश्वास है कि ये अच्छा काम करने वाला है। एंड वी आर डन थिंग्स। हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में आ चुका है। यस, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है सर। तो आदर्श जी, क्या आप हमारे दर्शकों को भी इनकरेज करेंगे इससे जुड़ने के लिए? जी जी बिल्कुल। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो है मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड है और मैक्सिमम यील्ड होगा आपका, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी छोटे छोटे सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे लोगों को अपने घर में वो हम एनकरेज कर सके कि वो अपने घर में भी इसको सेटअप को रखें और अपना कोई भी लीफी वेजिटेबल हो गया, कुछ भी हो गया, अपने से उगाएं और खाएं। जी, एनीथिंग इन द सेंस कि आप वाइन क्रॉप्स के लिए अलग से सेटअप होता है। जो हम सेटअप बना रहे हैं वो लीफी वेजिटेबल्स के लिए, जैसा आपका लेटस हो गया जो सैलड में यूज़ होता है, जैसा आपका स्पिनाच हो गया, जैसा आपका मेथी हो गया, जैसे आपको कोरिएंडर हो गया, जैसे आपका मिंट हो गया। तो ये सब आप वो सेटअप में कर सकते हैं। लेटेस्ट जैसे चीज़ अंडमान के एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। और हमारा फार्म जो है पहली बार लेटस भी उगाया है, हमारे पास सब फोटोज़ वगैरह जो है, और इसके बाद हमने कस्टमर्स को भी दिया अपना लेटस, और उनसे भी हमको बहुत अच्छा फीडबैक आया है। तो जैसा आपने सुना, इजरायली तकनीक को इस्तेमाल करते हुए हमारे अंडमान के ही दो नौजवान सौमित जी और आदर्श जी, इन लोगों ने किस तरीके से इस तकनीक को काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लाया है, और इसका जो परिणाम है वो भी निकल रहा है। क्योंकि आप सब जानते हैं इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है। जगह की कमी और पानी को बचाते हुए वहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने जो नया तकनीक निकाला है, जिसमें सॉइल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पानी में, और काफ़ी कम जगह में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। उसी को हमारे ये दो नौजवानों ने अंडमान में लाया, जिसके लिए हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है और इनको बधाई देती है और आगे के लिए शुभकामनाएं भी देती है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जिस तरीके से आपने देखा किस तरीके से नाबार्ड 41वें स्थापना दिवस पर एक एक कर कई लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई और नाबार्ड से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स थे उनके बारे में बताया, और कैसे इनके प्रोजेक्ट से बाकी अंडमान की जनता जुड़ सकती है इनके बारे में भी बताया, और किन किन लोगों ने नाबार्ड से फ़ायदा उठाया। इन सब चीज़ों को आपने एक एक कर देखा। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी आप सब जनता से, हमारे दर्शकों से गुजारिश करती है कि अगर आपके पास भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट है और आप भी चाहते हो कि अलग से कुछ करें एम्प्लॉयमेंट के राह पर, तो आप भी नाबार्ड से जुड़िए, नाबार्ड में आइए और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को लीजिए और उन्हें सफलतापूर्वक करिए और अपने जीवन को बदलें। इसी के साथ मैं यामीन, कैमरा पर्सन दीपिका के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 से आपसे अभी विदा लेता हूँ। नमस्कार। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि नाबार्ड के GMO मनोज जी ने हमें नाबार्ड के सफलताओं के बारे में बताया, कैसे नाबार्ड से अंडमान की जनता तथा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फ़ायदा हुआ, और नाबार्ड के 2022 और 23 रोड मैप के बारे में बताया। साथ ही आपने सौमित जी और आदर्श जी के प्रोजेक्ट्स के बारे में भी सुना व देखा, किस तरह समय तथा पानी की बचत करते हुए बिना सॉइल की खेती की जाती है। न्यूज़ अंडमान 24/7 आप सभी से गुजारिश करती है कि आप भी कुछ प्रोजेक्ट्स को लें और नाबार्ड की सहायता से रोजगार को भी बढ़ावा दें। नाबार्ड के अफसर कर्मचारी आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित हैं। इसी के साथ मैं समीरा बानू हमारे आज के इस कड़ी को यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।